નમસ્કાર. ડીએલએડ સેકન્ડ યર 2020-21નું વર્ષ. કોર્સ 5. કોર્સ 5માં સમાજ વિદ્યા 35 માર્કનું. 5B એમાં હિન્દી અને સંસ્કૃત એ બંને. હિન્દીમાં ટોટલ માર્ક્સ 18 અને એનું વિષય વસ્તુ ધોરણ 5 થી 8. ઇન્ડેક્સ જોઈએ તો ચેપ્ટર જે છે ટોટલ 5 છે અને 5 ચેપ્ટર એ 18 માર્ક્સમાં વહેંચાયેલા છે. પહેલું ચેપ્ટર અભ્યાસक्रम का स्वरूप एवं प्रमुख कौशलों में प्रभुत्व. અભ્યાસક્રમનું સ્વરૂપ તથા પ્રમુખ 4 કૌશલ્યો જે છે એમાં પ્રભુત્વ. નેક્સ્ટ હિન્દી પાઠ્યપુસ્તક એવં શિક્ષક સૌદર્શિકા. હિન્દીનું પાઠ્યપુસ્તક તેમજ શિક્ષક નિદર્શિની. ત્રીજું व्याकरण शिक्षण. ચોથું ભાષા શિક્ષા કી વિધિયા એવં મૂલ્યાંકન એટલે કે ભાષા શિક્ષણની પદ્ધતિઓ તેમજ મૂલ્યાંકન. અને અંતે હિન્દી સાહિત્ય કે સ્વરૂપ એવં સાહિત્યકાર એટલે કે હિન્દી સાહિત્યનું સ્વરૂપ અને તેના સાહિત્યકારો. પ્રકરણ 1 પર નજર નાખીએ તો अभ्यासक्रम का स्वरूप एवं प्रमुख कौशलों में प्रभुत्व. इकाई का प्रारूप. इकाई એટલે પાઠ, એનું પ્રારૂપ એટલે એની યોજના રૂપરેખા. સૌપ્રથમ પ્રસ્તાવના. ઉદ્દેશ્ય એવં અધ્યયન નિષ્પત્તિયા. એ જે શિક્ષક નિદર્શિનીમાં આપેલા લર્નિંગ આઉટકમ્સ છે એ નિષ્પત્તિ. ત્યારબાદ તો કે વિષય વસ્તુ. વિષય વસ્તુમાં આ ચેપ્ટરનો વિષય વસ્તુ એમાં અભ્યાસક્રમ કા અર્થ, અભ્યાસક્રમનો અર્થ, અભ્યાસક્રમ કા સ્વરૂપ, અભ્યાસક્રમનું સ્વરૂપ. કેવું સ્વરૂપ? તો કે અભ્યાસક્રમનું બાહ્ય સ્વરૂપ અને અભ્યાસક્રમનું આંતરિક સ્વરૂપ. અભ્યાસક્રમના બાહ્ય સ્વરૂપમાં ભાષા કે પ્રમુખ ઉદ્દેશ્ય, ભાષાના પ્રમુખ ઉદ્દેશ્યો અને અધ્યયન નિષ્પત્તિયા. और अध्ययन निष्पत्तियाँ એમાં અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ જે આપેલી છે, લર્નિંગ આઉટકમ્સ જે આપેલા છે એ લર્નિંગ આઉટકમ્સ એટલે જુદા જુદા જે કૌશલ્યો જે છે એમાં વહેંચાયેલો સારગ્રહણ. જે પાઠ હોય એનું સારગ્રહણ એ કયા કયા કૌશલ્યમાં વહેંચાયેલું છે એ નિષ્પત્તિઓમાં બતાવેલું છે. આંતરિક સ્વરૂપમાં કઈ બાબતો? અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ में उत्कृष्ट गुणवत्ता प्राप्त करना. અધ્યયનના જે લર્નિંગ આઉટકમ્સ આપેલા છે, જે એના ટાર્ગેટ આપેલા છે, લક્ષ્ય આપેલા છે, ઓબ્જેક્ટિવ્સ આપેલા છે, એમાં ઉત્કૃષ્ટ ગુણવત્તાને પ્રાપ્ત કરવી. અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ કી વિકાસાત્મક શૃંખલા. એ જે લર્નિંગ આઉટકમ્સ છે, એ જે લક્ષ્યો છે એની વિકાસાત્મક હારમાળા. અને માનવીય મૂલ્યો કો ઉજાગર કરના. ઉજાગર કરના એટલે પ્રકાશમાં લાવવું, બહાર લાવવું. વિષય વસ્તુ દ્વારા મૂલ્યોને બહાર લાવવા. ઇકાઈ કા સારાંશ. इकाई એટલે પાઠ, ફરીવાર કહું છું એનો સારાંશ. સમજ જાંચને વાલે કે પ્રશ્ન, સંદર્ભ સાહિત્ય અને અંતે પ્રાયોગિક કાર્ય. प्रस्तावना એની જોઈએ તો भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है. अनुच्छेद એટલે પેરેગ્રાફ. આપણે 3 લેંગ્વેજ ફોર્મ્યુલા એ ઇંગ્લિશ કોર્સ 3B ના ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં શીખ્યા હતા કે 3 લેંગ્વેજ ફોર્મ્યુલા એ ભારત દેશમાં અપનાવવામાં આવેલી છે. એટલે કે પોતાની માતૃભાષા, બીજી ભાષા તરીકે હિન્દી, ત્રીજી ભાષા તરીકે ઇન્ટરનેશનલ લેંગ્વેજ. અહીંયા જે છે એ હિન્દી જે છે એ ક્યાં આગળ કઈ ભાષા છે એનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે અને હિન્દી રાજભાષા છે એનું પણ સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. हिंदी को राजभाषा यानी कि राज्य या प्रशासन की भाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वाधीन भारत की संविधान सभा ने घोषित किया है. सन 1949 को એટલે કે 1949માં 47માં દેશ આઝાદ થયો અને 49ને 14 સપ્ટેમ્બરે હિન્દીને રાષ્ટ્રભાષા તરીકેનું સ્વરૂપ મળ્યું, રાષ્ટ્રભાષા તરીકેનો એને દરજ્જો મળ્યો. हिंदी भाषा का राजभाषा के स्वरूप में प्रयोग करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली,
ઉત્તરાંચલ और हिमाचल प्रदेश। आ जे राज्यों छे त्यां हिंदी जे छे ए जे मातृभाषा छे एटले कि प्रथम लैंग्वेज ज फर्स्ट लैंग्वेज अथवा तो मदर टंग कहिए तो ये हिंदी है। जबकि द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य हैं। तो अहीं शू है, अहीं ये बात है कि जहाँ पर इन राज्यों की मातृभाषा जो है वह प्रथम भाषा है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में જોઈએ तो पंजाबी એ એની માતૃભાષા છે, મહારાષ્ટ્રમાં જોઈએ તો મરાઠી અને ગુજરાતમાં જોઈએ તો ગુજરાતી। તો અહીંયા हिंदी જે છે એ દ્વિતીય ભાષાના રૂપમાં છે। भारतीय भाषा की भगिनी भाषा और विश्व की श्रेष्ठ ध्वन्यात्मक भाषा के रूप में जिस भाषा को आदर के साथ याद करते हैं उस हिंदी भाषा की कई विशेषताएं हैं। हिंदी भाषा का अपना एक व्याकरण है। हिंदी भाषा का व्यापक और मौलिक साहित्य भी है। शब्द संपदा એટલે કે वोकेबुलरी और साहित्य भंडार भी अत्यंत समृद्ध है। वह विचार विनिमय का सरल माध्यम है। उच्चतर अध्ययन की इस भाषा में भारतीय संस्कृति या मूल्यों का प्रतिबिंब है। अतः हिंदी भाषा की इन सारी महत्वपूर्ण विशेषताओं को मद्देनजर रखकर गुजरात प्रांत की प्राथमिक पाठशालाओं में कक्षा 4 सेकंड सेम એટલે કે द्वितीय सत्र से हिंदी सिखाना प्रारंभ होता है, जो कक्षा 8 तक सिखाना तय किया गया है। अतएव कक्षा 5 से 8 तक के हिंदी अभ्यासक्रम के स्वरूप को समझना शिक्षक के लिए अनिवार्य है। उद्देश्य एवं अध्ययन निष्पत्तियाँ। आना उद्देश्य, आना ऑब्जेक्टिव्स कया कया छे? जेम के प्रशिक्षणार्थी अभ्यासक्रम का अर्थ समझ सकेंगे, अभ्यासक्रम के स्वरूप को समझ सकेंगे, हिंदी भाषा के प्रमुख कौशलों को अर्जित करेंगे, हिंदी भाषा की अध्ययन निष्पत्तियों का परिचय प्राप्त करेंगे। आ बात ऑब्जेक्टिव्सनी थई। हवे आज बात लर्निंग आउटकम्सना रूपमां जोईए तो कि अध्ययन निष्पत्तियाँ प्रशिक्षणार्थी में आ डेवलप थवू જોઈએ। अभ्यासक्रम का अर्थ दे सकेंगे, अभ्यासक्रम के बाह्य और आंतरिक स्वरूप का भेद कर सकेंगे, हिंदी भाषा के प्रमुख उद्देश्यों के स्वरूप को समझ सकेंगे, कक्षा 5 से 8 हिंदी का अध्ययन निष्पत्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और अध्ययन निष्पत्ति विषयक अध्ययन प्रक्रिया की व्यू रचना को समझ सकेंगे। आज पहलू चैप्टर है एमा अभ्यासक्रम का अर्थ એટલે કે विषय वस्तु में समाविष्ट करेलू है। अभ्यासक्रम का अर्थ, अभ्यासक्रम का स्वरूप, एम बाह्य स्वरूप, आंतरिक स्वरूप एनी बात करी है। अभ्यासक्रम का अर्थ, शिक्षा एक सउद्देश्य प्रक्रिया है। इसके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने का लक्ष्य है। सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा में अभ्यासक्रम का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अभ्यासक्रम छात्रों की क्षमता विकास का न केवल मार्ग निर्धारण करता है किंतु उसके मानांक भी निर्धारित करता है। यद्यपि अभ्यासक्रम एक व्यापक और दीर्घसूत्री संकल्पना है, जबकि वही अभ्यासक्रम कक्षा अध्यापन के लिए कक्षा व्यवहार में प्रयोजित होता है तब वह पाठ्यक्रम का स्वरूप धारण करता है। अभ्यासक्रम का स्वरूप, किसी भी वस्तु या प्रक्रिया का स्वरूप समझने के प्रमुख 2 आधार हैं। इनमें से एक आधार है उसका बाह्य स्वरूप तथा दूसरा आधार है उसका आंतरिक स्वरूप। આગળની જો ડેફિનેશન જુઓ તો અભ્યાસક્રમનો અર્થ તમને કહેવામાં આવ્યો છે કે અભ્યાસક્રમ એ શું છે। અભ્યાસક્રમ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે વિદ્યાર્થીઓને અને શિક્ષકને પણ ખ્યાલ આવે કે મારે વિદ્યાર્થીઓમાં આ કૌશલ્યોનો વિકાસ કરવાનો છે, આટલા મૂલ્યો પ્રસ્થાપિત કરવાના છે, આને આવી રીતના શીખવવાનું છે, આમાં ગદ્ય પણ છે, આમાં પદ્ય પણ છે, આમાં નાટ્ય પણ છે, કવિતાઓ જે છે, તો આ બધી જ બાબતો અભ્યાસક્રમની અંદર છે અને એ અભ્યાસક્રમનો વિકાસ એનામાં વિદ્યાર્થીઓમાં એનો વિકાસ કરવાનું કાર્ય શિક્ષકે કરવાનું છે। માટે અભ્યાસક્રમ સમજવો બહુ જરૂરી છે। હવે એનું આંતરિક અને બાહ્ય સ્વરૂપ। મોડ્યુલમાં સૌ પ્રથમ બાહ્ય સ્વરૂપ આપેલો છે। अभ्यासक्रम का बाह्य स्वरूप, अभ्यासक्रम पूर्व निर्धारित शैक्षिक अनुभवों का समुच्चय है। समुच्चय એટલે કે એનું એક જૂથ છે। इसलिए इस समुच्चय को समझने के लिए हमें अभ्यासक्रम के बाह्य स्वरूप को जांचना परखना होगा।
अभ्यासक्रम के बाह्य स्वरूप को समझने के लिए हमें भाषा के प्रमुख उद्देश्य और हिंदी कक्षा 5 से 8 के अध्ययन निष्पत्तियों को समझना है। इसलिए प्रथमतः भाषा के प्रमुख उद्देश्यों को समझेंगे। ભાષાના મુખ્ય ઉદ્દેશો અહીંયા આપેલા છે। 5 એના મુખ્ય ઉદ્દેશો છે। ફર્સ્ટ અર્થગ્રહણ, સેકન્ડ અભિવ્યક્તિ, थर्ड सृजनात्मकता, फोर्थ व्यावहारिक उपयोजन और फिफ्थ तार्किक चिंतन। इन 5 उद्देश्यों को हिंदी के प्रमुख लक्ष्य भी माने जाते हैं। फर्स्ट अर्थग्रहण, सुनकर, देखकर, पढ़कर या अनुभूति के माध्यम से व्यक्त हुए मनोव्यापारों का बोधन करना ही अर्थग्रहण है। कोई वस्तु तमे सांभळीने, जोईने, वांचीने के अनुभवीने तमारा मगजमां जे कंई एनु मनोव्यापार चाले, एनु तार्किक चिंतन चाले, मनन थाय अने तमे जे एनो अर्थग्रहण करो छो ए अर्थग्रहण, ए अभिव्यक्तिने अर्थग्रहण कहे छे। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। जो अभिव्यक्त होता है वही अभिव्यक्ति करने वाले के मनोजगत में रहे विचार, अवधारणा, संवेदनाएं, ज्ञान तथा अनुभव है। इनका सही तथा सार्थक अर्थ करना, उनके भीतर रहे लक्ष्यार्थ को प्राप्त करना ही अर्थग्रहण है। अर्थग्रहण से व्यक्ति की सोच विकसित होती है। अर्थग्रहण क्षमता को विकसित करने के लिए कक्षानुसार अध्ययन सामग्री तथा अध्येता के अनुकूल भाषा प्रयोग आवश्यक है। अर्थग्रहण की भाषा शिक्षा सीढ़ी का प्रथम सोपान है। अभिव्यक्ति, विचारों, अनुभवों, भावों, आवश्यकताओं और इच्छाओं को मौखिक, लिखित या सांकेतिक रूप से व्यक्त करना अभिव्यक्ति है। કંઈક वस्तुने प्रस्तुत करवी, रजू करवी એટલે अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति के 2 स्वरूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक अभिव्यक्ति अंतर्गत वक्तव्य, संवाद, प्रश्नोत्तरी आदि का समावेश होता है, जबकि लिखित अभिव्यक्ति में निबंध लेखन, कहानी लेखन, पत्र लेखन, रिपोर्टाज आदि समाविष्ट है। अभिव्यक्ति जीवन का अविभाज्य अंग है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपनी संवेदना, विचार या स्थिति को अभिव्यक्त कर सकता है। अतएव भाषा के उपादानों का सार्थक प्रयोग कर पाना अनिवार्य है। जो योग्य समये योग्य शब्दों वापरीने ज भाषानो उपयोग करवानो होय छे। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता का अर्थ है परंपरागत अभिव्यक्ति प्रणाली को त्याग कर अपनी मौलिक अभिव्यक्ति प्रणाली को प्रतिष्ठित करना। भाषा शिक्षण का जहाँ तक संबंध है, वहाँ भाषा के नावीन्यपूर्ण और कलात्मक प्रयोग के द्वारा अपने भावों की मौलिक अभिव्यक्ति सृजनात्मकता है। दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। इस उद्देश्य को विकसित होने पर व्यक्ति भाषा की वैविध्यपूर्ण विधाओं में अपने भावों और विचारों को चिरस्थायी એટલે કે લાંબા समय સુધી સાચવી શકે છે, बना सकता है और अपने जीवन को भी उन्नत बना सकता है। साथ ही भाषा का भी विकास एवं सर्जन होता है। व्यावहारिक उपयोजन, अनुभूति, अर्जित माहिती, अर्जित એટલે મેળવેલી, प्राप्त करेली माहिती और ज्ञान, समझ का व्यवहार में प्रयोग व्यावहारिक उपयोजन है। भाषा को सही ढंग और प्रभावी रूप से रोज़मर्रा के जीवन में, रोज़मर्रा એટલે डेली रूटीन लाइफ में उपयोग करना ही भाषा का व्यावहारिक उपयोजन है। छात्र भाषिक तत्वों की पहचान और परख द्वारा भाषा को हस्तगत कर अपने विचारों और भावों का उपयोग करें, यही आवश्यक है। भाषा प्रकृतितः संप्रेषण का माध्यम है, कम्युनिटी અને कम्युनिकेशन संप्रेषण के लिए अनिवार्य है। भाषा का सार्थक उपयोग, भाषा अलंकार की सामग्री नहीं है, भाषा व्यवहार की सामग्री है। अतः भाषा में व्यवहारिक उपयोग का महत्व है। लास्ट, तार्किक चिंतन। किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण, लॉजिकली सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। यह किसी भी व्यक्ति की सोच, विचार करने के मानसिक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक अभिगम आधारित है। तार्किक चिंतन यह मुक्त चिंतन है। तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरने वाली किसी भी प्रस्तुति का तार्किक चिंतन करने वाले स्वीकार नहीं करते हैं। तार्किक चिंतन के उपकरणों में पृथक्करण, संश्लेषण, तुलना, साम्य वैषम्य,
તથા પ્રમાણ કો लिया जा सकता એટલે કે એનાલિસિસ, એનું વર્ગીકરણ કરવું, સંશ્લેષણ કરવું, કમ્પેરિઝન કરવી, તુલના કરવી, સામ્ય અને વૈષમ્ય એટલે કે ડિફરન્સ બેમાં સમજવો અને એનો પ્રમાણ જે છે એનું જે ઉપયોજનનું જે વેલોસિટી છે એને પણ ધ્યાનમાં રાખવી. तार्किक चिंतन करवा वाला आटली वस्तुओं ध्यान में रखे छे. जब बद्यता किसी भी प्रस्तुति का इनमें से किसी का उपकरण का प्रयोग कर मूल्यांकन करता है तब तार्किक चिंतन होता है. अनुभव अभिव्यक्ति का रूप तब धारण करता है जब व्यक्ति ने अनुभव को तार्किक रूप से ग्रहण किया हो. अनुभव अनुभूति का रूप तब धारण करता है जब अनुभव के विषय में तार्किक चिंतन हुआ हो. शिक्षा अनुभव प्रदान करती है तथा अध्येता का तार्किक चिंतन अनुभव को अनुभूति में तब्दील करता है. तब्दील करवो एटले बदलवो, फेरवो, ट्रांसफॉर्म करवो. इस हेतु भाषा शिक्षा के द्वारा छात्रों की तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास होता है. आना पछी लर्निंग आउटकम्स ना माध्यमथी अध्ययन निष्पत्तियां आपेलुं छे मॉड्यूलमां અને જેને આ કૌશલ્યોમાં વહેંચેલું છે 5 કૌશલ્યોની અંદર. અર્થગ્રહણમાં, અભિવ્યક્તિમાં, સર્જનાત્મકતા, વ્યવહારિક ઉપયોજન અને તાર્કિક ચિંતન, આ 5 જે મુખ્ય ઉદ્દેશો જે છે એની વચ્ચે નિષ્પત્તિઓને વહેંચવામાં આવી છે. એ ધોરણ 5 થી 8 વિષયની છે. એના પછી અભ્યાસક્રમ કા આંતરિક સ્વરૂપ આપેલું છે. કહેવાય છે કે અભ્યાસક્રમ કા બાહ્ય સ્વરૂપ शरीर है और उसका आंतरिक स्वरूप उसकी आत्मा है. तो एमा पण त्रिपरिमाण आप्या छे. केवा? तो कि अध्ययन निष्पत्तियों में उत्कृष्ट गुणवत्ता प्राप्त करना, अध्ययन निष्पत्तियों की विकासात्मक श्रृंखला समझना, मानवीय मूल्यों को उजागर करना. ये बधुं आमां डिटेलमां एक एक वस्तु आपेली छे. अध्ययन निष्पत्तियों में उत्कृष्ट गुणवत्ता प्राप्त करना, एने जो वधारे ध्यानथी जोईए तो एना 3 स्तर आपेला छे. अध्ययन निष्पत्ति के 3 स्तर स्वीकार किए हैं. वे इस प्रकार हैं. कैसे? उत्कृष्ट गुणवत्ता, मध्यम गुणवत्ता और कनिष्ठ गुणवत्ता. अध्ययन निष्पत्ति संबंधित 2 शब्दों का सही अर्थबोध करना अनिवार्य है. आ 2 शब्दों कया? अपेक्षित अध्ययन निष्पत्ति અને વાસ્તવિક અધ્યયન નિષ્પત્તિ. નિષ્પત્તિઓને 3માં વિભાજિત કરી ઉત્કૃષ્ટ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠમાં. અધ્યયન નિષ્પત્તિઓને સમજાવી છે પણ ડિટેલમાં. અનુભવ પણ કેવી રીતના એમાં પ્રદાન કરવું એના વિશેની પણ વાત કરી છે. મૂલ્યાંકન કઈ અધ્યયન નિષ્પત્તિનું ક્યાં કેવી રીતના શું તમે કરો એનો પણ એમાં માહિતીસભર મેટર આપેલું છે. અધ્યયન નિષ્પત્તિમાં ડિફ્થોંગ્સ એટલે કે સંયુક્ત અક્ષરયુક્ત શબ્દો, જોઈન્ટ જેને કહે છે જોડાક્ષરો ગુજરાતીમાં, એ કેવી રીતના મૂલવવા એનું પણ આપેલું છે. અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ કે વિકાસાત્મક શૃંખલાઓનું પણ ચર્ચા એમાં કરી છે. વર્ણોની, શબ્દોની. પછી ફરી પાછું માનવીય મૂલ્યો પર પ્રકાશ નાખવાની વાત એમાં પણ કરી છે. એમાં પછી જેમ જેમ આગળ વધીએ એમ જે પાઠના યુનિટ છે એમાં કયા મૂલ્યો કઈ જગ્યાએ પ્રસ્થાપિત કર્યા છે એના વિશેની વાત કરી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કક્ષા 6માં દયાલુ શિકારી, તો એમાં માનવતા, દયા, કરુણા અને પ્રાણી પ્રેમની વાત છે. સુબહમાં જોઈએ તો સાહસ, નિડરતા અને પરિશ્રમની વાત છે. રાજા કા હિસ્સા ફોર એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો એમાં પરિશ્રમ, પ્રેમ, પરોપકાર, સચ્ચાઈ, સહાનુભૂતિ, સદવ્યવહાર અને પ્રામાણિકતા આવા મૂલ્યો પ્રસ્થાપિત કરેલા છે. ધોરણ 6, 7 અને 8ની વાત કરી છે. बस इकाई ना सारांश में एज कि इस इकाई में हम समझ सके कि सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा में अभ्यासक्रम का महत्वपूर्ण स्थान है. अभ्यासक्रम एक व्यापक और दीर्घसूत्री संकल्पना है, एक कंसेप्ट है, एक ख्याल है. अभ्यासक्रम कक्षा अध्यापन के लिए कक्षा व्यवहार में प्रयोजित होता है तब वह पाठ्यक्रम का रूप धारण करता है. એટલે કરિક્યુલમ અને સિલેબસ એ બેનો ડિફરન્સ જે છે એ અહીંયા સમજાવ્યો છે. अभ्यासक्रम का स्वरूप समझने के प्रमुख 2 आधार हैं, बाह्य स्वरूप और आंतरिक स्वरूप. अभ्यासक्रम के बाह्य स्वरूप में भाषा के प्रमुख उद्देश्य एवं अध्ययन निष्पत्तियों का समावेश होता है, जबकि अभ्यासक्रम का आंतरिक स्वरूप त्रिपरिमाणधारी है.
आंतरिक स्वरूप त्रिपरिमाणों में अध्ययन निष्पत्तियों में उत्कृष्ट गुणवत्ता प्राप्त करना, अध्ययन निष्पत्तियों की विकासात्मक श्रृंखला एवं मानवीय मूल्यों को उजागर करना समाविष्ट है। अभ्यासक्रम के इन दोनों स्वरूपों का संबंध शरीर और आत्मा जैसा है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।